بائبل لفظ ہے یا مقدس کلام ہے، کتاب مقدس ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ، خدا کا خیال، خدا کا منصوبہ، خدا کی آواز، خدا کا کلام. اور یاد رکھیے خدا کا کلام کبھی بیکار نہیں جاتا. نکالیے ذرا یسعیاہ نبی کا صحیفہ، یسعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب اور 8ویں آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے، بلکہ 7ویں سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، پھول کملاتا ہے کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے. یقیناً لوگ گھاس ہے، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. خدا کا کلام اب تک کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. قائم رہتا ہے خدا کا کلام. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑھاتی ہے. ابھی سونے کا میں نے ذکر کیا، تو سونے کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی کیا خصوصیات کیا ہیں؟ کہ سونا جب ہم لیتے ہیں اس کو زنگ نہیں لگتا، سونے کو کیڑا نہیں لگتا. مٹی میں دبا دیں اور باہر نکالیں اور وہ ویسا ہی صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہر جگہ عام ہی نہیں پڑی ہوئی ایسی بس. اچھا بتائیے، ٹیشو زیادہ قیمتی ہے یا سونا؟ ٹیشو زیادہ قیمتی ہے. کیا کرتے ہیں ہم ٹیشو کے ساتھ؟ استعمال کر کے پھینک لیتے ہیں. کبھی سونے نے چینج کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیوں ایسا نہیں کیا ہم نے سونے کے ساتھ؟ وہ قیمتی خاص ہے. قیمتی ہے، ایک خاص دھات ہے. چاندی بھی خاص ہے لیکن یہ اس سے اوپر. اور اس خاصیت کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. اس خاصیت کی وجہ سے یہ لوگ پہننا پسند کرتے ہیں. اس خاصیت کی وجہ سے جو ہے اس کو زنگ نہیں لگتا. اس کے کیمیکل کچھ انگریڈینٹس ہیں جو دوسری دھاتوں سے اس کو مختلف کرتے ہیں. اس لیے یہ اپنی خاصیتوں کی وجہ سے دوسری ساری دھاتوں سے زیادہ قیمتی ہے. لویا لہنگا ٹیئر جو ہے تو وہ 160 روپے کلو مل جاتا ہے. تے سونا لین جاؤ تے 10 گرام سونا 1 لاکھ روپے. 10 گرام اتنا آسا ہے کہ ایک چھلا بھی صحیح ہے. چلو چھلا سے اتنا بنا لو، چھلا صحیح بن جاتا ہو. ایک تولہ کا 12 گرام ہوتے ہیں. ایک تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے. اور جو 12 خاصیتیں ہیں، یہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے سونا قیمتی ہے. اور سونا جو ہے یہ آپ کی جو مال و دولت ہے اس کو ذرا محفوظ کرتا ہے. سونا بادشاہی کی علامت گنا جاتا ہے. جس بادشاہی میں سونا زیادہ ہو وہ قیمتی گنی جاتی ہے. اور سلیمان نبی کی بادشاہی کے دور میں لکھا ہے کلام مقدس میں کہ سونا بے قدر ہو جاتا ہے. گلی گلی سے پہلے ہر بندے کو کوئی 2-3 کلو سونا ہوتا. آج ذرا ہر گھر سے جاؤ پوچھو تو سونا کتنا پہلے تو لوگ دستے ہیں. چلے جیسے مجھے 2-4 تولے ہوئے. 1-2 رنگ ہو سکتی، زیادہ ہو سکتا، 5 تولے ہو سکتا، 10 ہو سکتا. لیکن کلو 2 کلو کسے کھاچ ہوئے اسے تو ڈاکہ پہنے. تو اتنا خاص ہے سونا. یہ خصوصیات ہیں. تو آپ بھی ہم کلام مقدس کی خصوصیات کو دیکھنے جا رہے ہیں. سو لکھا ہے دوسرے تیموتھیوس کے خط میں اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو جب ہم دیکھیں، مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام اور اس کا 3 باب اور 16ویں آیت کو ہم پڑھنے ہیں. تو یہاں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. ہر ایک صحیفہ جو کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے. بچے جی کیوں نہیں ملا ابھی تک؟ اس کا مطلب بائبل نہیں پڑھتے.
किनू किनू लभ गया सच्ची सच्ची दसना किनू किनू हवाला लभ गया आप खड़ा क्योंकि जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इसका मतलब है कोई अहमियत नहीं है बाइबल की, कलाम खुदा की कोई अहमियत नहीं है। एक सेकंड से हवाला निकलना चाहिए। हाँ दोबारा जब अगली बारी मैं आवा नहीं प्रैक्टिस करो कि बस मेरे मुंह से लफज होता हवाला तो अगे हो या पैसा बैठे इनको पता हम जवानी में कैसे होते थे, किसी को हमने कभी पहले हवाला नहीं पढ़ने दिया। तो आप यंग हैं, मेहनत करें थोड़ी सी तरह। हाँ अभी तो आपने खिदमत करनी है खुदावन की, जो कुछ आप सीख रहे हैं आप आगे तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्यों सीख रहे, सीखने का मकसद क्या? तिमोथेयुस के खत में लिखा है कि तू इनको जो ज्ञानदार लोग हैं ना उनके स्पुर्द कर। ज्ञानदार लोग क्या करेंगे, इनको फिर आने वाली नस्ल तक पहुंचाएंगे। तो जो आपने नहीं बाइबल पढ़नी तो आने वाली नस्ल ने बाइबल तो कम पढ़नी। हाँ इसलिए ये बच्चों आप खूब मेहनत करें, ये हवाला जल्दी से मिलना चाहिए। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, दूसरा तिमोथेयुस का खत उसका 3 बाब और 16 आयत। जी बेटा अभी मिल गया, अभी सही से निकाले जरा, अभी मैं आप ही से पढ़वाना। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा 16 आयत जी। हर एक सफा सहीफा जो खुदा के इल्हाम से हर एक सहीफा जो खुदा के किससे है, इल्हाम से है, जो खुदा के इल्हाम से है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। और ये जो इल्हाम है इसके लिए यूनानी लफ्ज है थियोपेनोटास, और इसका मतलब है खुदा की सांस या खुदा का सांस। खुदा का क्या है, सांस। इल्हाम जो है ये खुदा का सांस है। लेकिन साड़ी सांस बंद हो जाए अभी जिंदा रहोगे, फिर किने लियाओ जी जल्दी जल्दी इनको ऑक्सीजन लगाओ, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लियाओ जी लगाओ। जो हमारे फेफड़े हवा में से ऑक्सीजन खींचने नकारा हो गए हैं, तो ये इल्हाम जो है ये खुदा का सांस है। गोया हर एक सहीफा, ये जो किताबें मुकद्दस है, ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये लिखी गई है कैसे, ये खुदा का सांस है। तो सांस एक इंसान के लिए कितनी अहम है। ये कलाम जो मेरे और आपके हाथों में है, ये कलाम खुदा का सांस है, इल्हाम है। इसलिए ये हमारे लिए मुकद्दस है, इसलिए ये हमारे लिए पाक है, इसलिए ये हमारे लिए मुतबारक है, इसलिए काबिल ताज़ीम है, इसलिए काबिल इज्जत है। क्योंकि ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये हम सब का जो खालिक है, कादिर मुतलिक है, उसके इल्हाम से यानी उसके सांस के बायस ये तहरीर किया गया है, ज़ब्त तहरीर में लाया गया है। इसलिए ये हमारे लिए अहम है। ये खसूसियत है इसकी, ये खसूसियत है कि ये इल्हाम से लिखा गया और जिंदा है, कायम व दायम है, कभी तबाह नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, बल्कि कायम रहता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि घास को मिलाती है और इंसान क्या है, घास। लेकिन खुदा का कलाम अब कब तक, कब तक, कब तक, अब तक खुदा का कलाम कायम रहेगा क्योंकि जिंदा है। सो एक तो यह है रेमा, यूनानी लफ्ज है रेमा, इसका मतलब भी कलाम है, और ये कलाम भी अब तक कायम रहने वाला है। अब बताइए जो अवधि है जरा अब तक कायम रहने वाला वो ज्यादा कीमती है कि जरा नहीं देखो तो अगले अल्लाह में खत्म। इंसान का कलाम ऐसा है कि वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाने वाला है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहने वाला है। और ऐसी वादा कर रहे हैं और कई 5 साल पूछो भाई चर्चियों में
बस भाई साहब बड़े मसले मसाइल साहब हुण मैं अज दुआवां करा इस इतवार तो मैं आना ही आना वो इतवार आ जाता फिर कोई कहाँ गया हमारा वो कलाम जो हमारे लबों से निकला हमारे मुंह से निकला कितनी देर कायम रहा लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा और बेअंजाम खुदा के पास वापस नहीं जाता अंजाम लेकर आता है अंजाम तक पहुंचता है इसलिए ये खुदा के कलाम की खसूसियत ये है ये जो हमारे पास किताब मुकद्दस है इसकी खसूसियत ये है कि ये इल्हाम है ये रेमा है और ये अब तक कायम रहने वाला कलाम है जिंदा करता है खुदा का कलाम क्या करता है जिंदा करता है खुदा का कलाम क्या करता है जिंदा करता है ये जो किताब हमारे पास है ये जो किताब हमारे हाथों में है ये जो जिसको हम सजाकर अपनी परछतियों में रख देंगे ये कलाम मामूली नहीं है इस कलाम में जिंदगी है ये कलाम जिंदगी रखता है ये कलाम बरकत रखता है ये कलाम शिफा रखता है ये कलाम कुदरत से मुलव्वस कर देता है और ये कलाम खुदा का फरमान है क्या है खुदा का फरमान ये कलाम खुदा का क्या है फरमान है क्या है फरमान है फरमान है इमरत का लिखा गया जो हम उर्दू में कहते हैं खुदा का फरमान यहाँ इब्रानी लफ्ज है इमरत का और इसका मतलब है तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया ज़बूर 119वां उसकी 50वीं आइए जरा पढ़े मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है तेरे कलाम ने मुझे अगर ऊपर हम पढ़ेंगे जरा 49 ऐसे लिखा है जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया सो जिंदा करता है खुदा का कलाम क्या करता है जिंदा करता है खुदा का कलाम क्या करता है जिंदा करता है जिंदा करता और फिर खुदा का कलाम रूह है और जिंदगी है खुदा का कलाम क्या है रूह है और जिंदगी है सबसे पहले हमने देखा कि खुदा का कलाम इल्हाम है यानी खुदा का सांस है फिर हमने देखा कि खुदा का कलाम रेमा है जो अंदर उतर आता है ख्यालों में और घेर लेता है ताकि हम अपनी मर्जी ना करें और फिर हमने देखा कि खुदा के कलाम की यह खासियत है खसूसियत है कि खुदा का कलाम जिंदा है और फिर खुदा के कलाम की एक और खसूसियत ये है कि खुदा का कलाम रूह है और खुदा का कलाम जिंदगी है क्या खसूसियत है खुदा के कलाम की खुदा का कलाम रूह है और खुदा का कलाम रूह है और जिंदगी और क्या है जिंदगी खुदा का कलाम रूह है और जिंदगी जिंदगी है रेमाटा रेमाटा और इसका मतलब है बातें करना इसी से लफ्ज रेमाटा निकला है जिसका मतलब खुदा की बातें बोलनी तो अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब देखें इंजील उसका 6वां बाब 63वीं आयत करने वाली तो रूह है जिस्म से कुछ फायदा नहीं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है हालेलुया जो बातें मैंने तुमसे की हैं खुदावंद यीशु मसीह दी गल्लां दी अहमियत साडे अंदर की बोलदी है किन्नी काहम हां जी किन्नी काहम यीशु मसीह दी गल्लां आए ने यीशु मसीह कहंदा है कि दूसरे नाल मोहब्बत रखो ते जरा जायजा लो असीं एक दूसरे नाल किन्नी मोहब्बत रखो हां किन्नी सो खुदा का कलाम खुदा के कलाम की यह खसूसियत है कि खुदा का कलाम रूह है खुदा की बातें रूह हैं और खुदा की बातें खुदा यीशु मसीह की बातें रूह हैं और जिंदगी है ला तब्दील है ये कलाम ला तब्दील है बदल नहीं सकता जरा निकालिए 32 रसूल की
5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को हम पढ़ते हैं। देखिए, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो ले। एक शोशा, एक नुक्ता भी मिट नहीं सकता। सो खुदा का कलाम की ये खसूसियत है, खासियत है कि ये ला तब्दील है, ये तब्दील नहीं होगा। भाई बेशक कोई शख्स हमसे ये सारी अनाजील की किताबें उठाकर कहीं जला दे, कहीं इनको दूर लेकर हमसे हमारे पास ये लिखा हुआ ना भी हो, तो भी खुदा अपने कलाम पर हमेशा कायम रहता है और उसका कलाम ला तब्दील है। कोई इंसान नहीं कि अपना इरादा बदले, बल्कि उसका कलाम अब तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। फिर इस किताब मुकद्दस की अहमियत यूं नजर बढ़ जाती है कि ये कलाम जो है, खुदा का कलाम कुदरत और जलाल से भरा हुआ। इस खुदा के कलाम में कुदरत है, इस खुदा के कलाम में कुदरत है। ये कुदरत नजर कैसे आती है? आपने अभी पिछले महीने की बात है, एक अजीम खादम कोरिया के, जनूबी कोरिया के डॉक्टर योंगचू, डेविड योंगचू, वो मसीह में सो गए हैं। उस शख्स की एक गवाही है, कामयाब मसीही जिंदगी किताब का नाम है। आपको मिले तो जरूर ये किताब पढ़े, कामयाब मसीही जिंदगी योंगचू की किताब है। आप ये लें, इसको पढ़ें। तो इसमें वो अपनी गवाही लिखता कि मैं ऐसा बीमार था कि मैं बिल्कुल मरने के करीब था। मुझे कहने लगे आपको इंतहाई मरने की टीबी हो गई। तो मैं बाहर घर से चला गया, एक झोंपड़ा बनाया घास का, तो वहाँ रहने लगा। वो दिखता, उसमें एक छोटी बच्ची मेरे पास आई एक दिन, उसके पास छोटी सी अंजीर थी, उसमें से एक हवाला पड़ा और दुआ करके चली गई। 2-3 दिन के बाद वो दोबारा आई, फिर उसने हवाला पड़ा और दुआ करके चली गई। जब वो तीसरी दफा आई तो मैंने कहा यार इसमें से बड़े अच्छे हवाले पड़े नहीं, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। तो उसने कहा कि अगर आप ये किताब मुझे दे दो तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। उसने कहा ठीक है। उसने खुशी से वो बाइबल उसको दी और दुआ करके चली गई। और वो कहने लगा कि लिखने के जब मैं पढ़ने लगा तो मत्ती की इंजील शुरू की तो वहाँ नसबनामा था। मैंने नसबनामा पढ़ा थोड़ा सा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं, रख दिया। फिर मेरा दिल चाहा मैं पढ़ूँ, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने रख दिया। फिर मैंने तीसरी दफ़ा मैंने कहा नहीं थोड़ा सा पढ़ के देखा। तीसरी दफ़ा वो पढ़ता गया और मत्ती की इंजील 7वें बाब की 55, 56 और 57 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, लिखा है उसने ना सिर्फ हमारे गुनाह उठाए बल्कि हमारी बीमारियां भी उठा ली। कहते जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो मैंने सोचा कि क्या मेरी बीमारी जो मेरे बदन में है, क्या ये बीमारी यीशु ने उठा ली? यहाँ आकर वो रुक गया और सोचने लगा, गौर करने लगा और खुदा के कलाम में उस बदन में कुदरत को नजर किया और वो कहने लगा हालेलुया, मेरी बीमारी यीशु ने उठा ली है, अब ये बीमारी इस बदन में नहीं है। और वो शख्स जिसको टीबी का मर्ज था और वो शख्स जो यंग एज में मरने वाला था, कितने साल आते, मेरे ख्याल पिछले महीने या उससे पिछले महीने, ये सितंबर में या शायद अगस्त में वो फौत हुआ, 85, 86 या 90 साल की उम्र में, जिसको डॉक्टर्स ने कहा 3-4 महीने में पेट करो, जो कुछ करने खाना है। लेकिन ये कलाम, ये जो जिंदा कलाम है, इसकी खसूसियत ये है कि ये जिंदा है। इस जिंदा कलाम ने उस शख्स की जिंदगी में कुदरत के साथ काम किया और ये जब कुदरत के साथ काम हुआ उससे खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और वो शख्स जिसको डॉक्टर ने कहा कि मरने वाला, कितने साल जीता। और खुदा ने क्यों मोहब्बत की और ये कलाम हमारे लिए क्यों लिखवा दिया, क्यों
نبوت میں تحریر میں لایا گیا تاکہ ہم مسیح تک پہنچ سکیں. تاکہ ہم کہاں تک پہنچے؟ اور مسیح کون ہے؟ مسیح خدا کی مان ہے. یسوع نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مسیح سے ملاقات کی گویا اس نے مسیح سے ملاقات کی. جس میں مسیح کا روح بستا ہے گویا اس میں خدا کا روح بستا ہے. مسیح دنیا میں آیا اور مصلوب ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا. خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا اور وہاں سے وہ پھر آنے والا ہے. کس کام کے لیے آنے والا ہے؟ تاکہ زندہ اور مردوں کی کیا کریں؟ تو کیا ہم اس کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ مرکز ہے جس کے لیے کتاب مقدس ضبط تحریر میں لائی گئی تاکہ ہم مسیح تک پہنچے. اور کلام غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کتاب مقدس مسیح تک لانے کے لیے ہمارا استاد بنا. ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ اس کلام کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. اس کتاب مقدس کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے. محض ہم نے اس کو کوئی رسالہ، کوئی میگزین، کوئی اور کتاب کو نہیں جان لیا. کیا ہم نے اس کو مقدس جانا؟ کیا ہم نے اس کو زندہ جانا؟ کیا ہم نے اس کو لا تبدیل جانا؟ کیا ہم نے اس کو ابد تک قائم رہنے والا کلام جانا؟ اور ہم نے مسیح کو کیسے جانا ہے؟ خداوند یسوع مسیح آپ کو یہ برکت بخشے کہ آپ اس کتاب مقدس کی ان خصوصیات کو یاد رکھتے ہوئے اس کو مقدس جانیں، اس کی تعظیم کریں اور اس سے برکت حاصل کریں، جلال حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں.